میں کچھ کہنے سے پہلے یہ ضروری سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے مدینہ المنورہ میں آرام فرمانے والے ہمارے پیارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ تو ایک مرتبہ آپ سبھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عشق سرکار میں جینا مجھے مرنا دے دے، عشق سرکار میں جینا مجھے مرنا دے دے، دینے والے تو غم ہجر مدینہ دے دے، اور دینے والے تجھے دینا ہے تو اتنا دے دے، دینے والے تجھے دینا ہے تو اتنا دے دے، اپنے محبوب کی یادوں میں تڑپنا دے دے، مجھ کو دربار رسالت میں کبھی اے مولا، مجھ کو دربار رسالت میں کبھی اے مولا، ماہ رمضان کا پیارا وہ مہینہ دے دے، اور پرفتن دور ہے ایمان کو بچانا یا رب، پرفتن دور ہے ایمان کو بچانا یا رب، مجھ کو اسلاف کے جیسا ہی عقیدہ دے دے، اور بعد مردن ہو خدا بخت پہ اتنا احسان، بعد مردن ہو خدا بخت پہ اتنا احسان کہ اس کے لاشے کو ذرا خاک مدینہ دے دے۔ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، آج میں آپ لوگوں سے جو گفتگو کرنا چاہتی ہوں وہ ایسے رسومات کے متعلق ہے جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، جو ہمارے اسلام میں منع کیا گیا ہے، جس کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں۔ بڑی مشہور روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے امتی جو آپ کے ظاہری حیات میں آپ پر دور دراز مقامات سے درود و سلام بھیج رہے ہیں، تو اسی طرح آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کے امتی، آپ کے چاہنے والے آپ پر درود و سلام بھیجیں گے اور محبت کے ساتھ پڑھیں گے، تو یا رسول اللہ کیا آپ ان کے درود و سلام کو سنتے ہیں اور یہ وصال کے بعد ان کے سلام کو سنیں گے؟ تو پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، او میرے صحابی سنو، انی اسمع الصلاۃ اہل محبتی وعرفہم۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میں اہل محبت کے سلام کو سنتا بھی ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں، یعنی میں سنتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ پڑھنے والا کون ہے، چاہے وہ کہیں سے پڑھے، دور سے پڑھے یا نزدیک سے پڑھے، ہندوستان سے پڑھے یا پاکستان سے پڑھے، عربستان سے پڑھے یا افغانستان سے پڑھے، امریکہ سے پڑھے یا برطانیہ سے پڑھے، فرش پر پڑھے یا عرش پر پڑھے، میں ہر ایک کے سلام کو سنتا ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں کہ کون پڑھ رہا ہے، کہاں سے پڑھ رہا ہے، کس کا بیٹا کس کا پوتا پڑھ رہا ہے۔ اور اے میرے صحابی سنو، ایسا نہیں کہ درود و سلام کا سننا پہچاننا صرف میری ظاہری حیات کا معاملہ ہے، بلکہ وصال کے بعد بھی میں اپنی قبر میں ان کے درود و سلام کو سنوں گا اور اب بھی اور جواب بھی عنایت کروں گا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ انبیاء کرام اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور دنیاوی زندگی سے زیادہ اختیار اور تصرف اور کمال انہیں حاصل ہوتا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام کر دیا کہ انبیاء کرام کے جسم کو مس بھی کرے، یعنی ان کے جسم کو چھوئے؟ تو سنو، انبیاء اپنی قبروں میں نہ صرف زندہ ہوتے ہیں بلکہ رب کی بارگاہ سے روزی بھی دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! تب تو ہمارے اہل سنت، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور اپنے قصیدہ سلامیہ میں یوں عرض کرتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کی عطا اور انبیاء کرام کے صدقہ و طفیل اولیاء کرام بھی اپنی قبروں میں مکمل اختیار اور کمال کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں کہ سب کی سنتے بھی ہیں اور دستگیری بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا اسی بات پر آئیے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیا جائے، کیونکہ درود پاک ہم جتنی مرتبہ پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے 10 مرتبے کو بلند کرے گا، ہمارے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور ہمیں 10 نیکیوں سے نوازے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ خدائے رحمان الرحیم کا ارشاد ہے، من عمل صالحا، یعنی جس نے نیک اعمال کیے، یعنی جو مرد ہو یا عورت اچھا عمل کرے اور مومن ہو تو ہم اسے اچھی زندگی میں
अच्छी जिंदगी जिलाएंगे। लिहाजा आज इस आयत करीमा की रोशनी में मैं आप लोगों से जो बयान कर रही हूँ वो ऐसी बातें हैं जो कि इस्लाम में फैलती चली जा रही हैं, जिनकी इस्लाम में कोई जगह नहीं, उनको इस्लाम में आज हम लोगों ने जगह दे दिया है। आज हम अपनी सोसाइटी और माशरे पर निगाह डालते हैं तो हमारी अक्सरियत गैर इस्लामी रस्म रिवाज पर, मगरबियत यानी अंग्रेजों और कुफार और मुशरिकीन के तर्ज अंदाज और तौर तरीके पर अमल पैरा नजर आती है। आज हम इतनी तेजी के साथ गैरों की तहजीब अपना रहे हैं जैसे हमारी कोई तहजीब ही ना हो, हमारा अपना कोई तमद्दुन ही ना हो, हमारा अपना कोई कल्चर ही ना हो, जैसे हम शरीयत इस्लामिया के बंधन से आज़ाद हो। मेरी बहनों, सैयदा फातिमा की कनीज़ों, याद रखो तुम शरीयत से हटकर दुनियावी और बाजारी औरत का तरीका अपना कर भले से थोड़ी देर के लिए ऐशो इशरत का बाजार गर्म तो कर सकती हो, मगर अल्लाह और रसूल के नजदीक तुम्हें जिल्लत और रुसवाई और बेइज्जती के सिवा और कुछ हाथ नहीं आ सकता। कब्र से लेकर हश्र तक तुम्हारे लिए खसारा ही खसारा और अजाब ही अजाब होगा, इसलिए कि इज्जत व आबरू और रहमत व बरकत इस्लाम के दामन में पनाह लेने से है और ना कि गैर मजहबों की तहजीब को अपनाने से। इसलिए ऐ मेरी इस्लामी बहनों, अगर तुम इज्जत चाहती हो, अपने इस्मत और वक़ार की हिफाजत चाहती हो, माशरे और समाज में नेक नामी चाहती हो, अल्लाह व रसूल की खुशी और राजी, अल्लाह व रसूल को खुशी और राजी रखना चाहती हो, तो हर हाल में तुम्हें शरीयत इस्लामिया का पासदार होना पड़ेगा। अहकाम इस्लाम को मानना होगा, अल्लाह व रसूल के अहकाम की फर्मा बरदारी करनी होगी, इस्लाम के दामन रहमत में पनाह लेना होगा, यहूद व नसारा और कुफार मुशरिकीन के तरीक़े कार से मुंह मोड़ना होगा। वरना याद रखो कि दामन इस्लाम को छोड़कर ना तुम्हारी दुनिया आबाद हो सकती है, ना तुम्हारी आखिरत कामयाब हो सकती है, और ना ही तारीख में तुम्हारी कोई शनाख्त और पहचान होगी। सच कहा है कहने वाले ने कि रास्ता अपने बुजुर्गों का नजर में रखना, रास्ता अपने बुजुर्गों का नजर में रखना, वरना मंजिल के निशानों को तरस जाओगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अद्दुनिया सिज्जुनुन लिल मुमिनीन व जन्नतुन लिल काफिरीन, यानी ये दुनिया मुसलमानों के लिए, मर्द हो चाहे औरत, मुसलमान जवान हो चाहे बूढ़े, अमीर हो या गरीब, हर मुसलमान के लिए ये दुनिया कैद खाना है और यही दुनिया काफिरों के लिए जन्नत है। सैयदा फातिमा की कनीजों, दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना है, इसका क्या मतलब? तो इसका मतलब यह है कि जब कोई इंसान कैदी होता है तो वो अपने आका के हुक्म का पाबंद होता है, कोई कदम उसकी मर्जी के बगैर नहीं उठाता, उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करता, बल्कि जो आका का हुक्म होता है उसे बसर और चश्म कबूल करता है और वो जो कहता है बिना चूं चरा किए उसे तस्लीम करता है। वो बहरहाल उसकी मर्जी और मंशा का पाबंद और ताबेदार होता है और उसी को कैदी कहते हैं, बिला तशबीह व तमसील। ऐ मेरी माओ बहनों, सैयदा फातिमा की कनीजों, हम सब अल्लाह और रसूल के कैदी हैं, उसके अहकाम के कैदी हैं, शरीयत मुताहरा के कैदी हैं, कुरान और हदीस के कैदी हैं। लिहाजा हमें वही करना चाहिए जो हमें अल्लाह और उसके रसूल हुक्म देते हैं, जो अल्लाह और रसूल चाहते हैं हमें वही करना चाहिए, जो शरीयत चाहती है हमें वही करना चाहिए, जो कुरान चाहता है हमें वही करना चाहिए, जो हदीस चाहती है यानी अल्लाह और रसूल जिससे मना कर रहे हैं उससे बाज आ जाना चाहिए और जिस चीज़ का हमें हुक्म दे रहे हैं उसे बजा लाना चाहिए। मसलन हमें नमाज का हुक्म हो रहा है, हमें रोज़े का हुक्म हो रहा है, हमें ज़कात और हज का हुक्म हो रहा है, वालिदैन के साथ फरमाबरदारी का हुक्म हो रहा है, हरामकारी से बचने का हुक्म हो रहा है, मसलन ज़िना, झूठ, गीबत, चुगलखोरी, सूद, जुल्म, बेरहमी, कताए रहमी और इसी तरह से जितने भी गैर इस्लामी रसूमात हैं, जितने भी गुनाह के काम हैं, उन सब से हमें बचने का हुक्म हो रहा है। और यही माना है कैदी के कि ऐ अल्लाह के बंदों और अल्लाह की बंदियों, जब तुम दुनिया में अल्लाह और रसूल के अहकाम के कैदी बनाकर उतारे गए हो तो फिर ये दुनिया तुम्हारे लिए कैद खाना है कि तुम खुदारा किसी को गाली मत दो, अपने हाथों का गलत इस्तेमाल मत करो, अपने आंखों और कानों का गलत इस्तेमाल मत करो, शरीयत इस्लामिया के कैदी बनकर रहा करो ताकि तुम्हारी दुनिया भी आबाद रहे और मरने के बाद कब्र से लेकर हश्र तक आराम ही आराम रहे और जन्नत ही तुम्हारा ठिकाना रहे। और याद रखो, अगर तुम यहाँ कैदी बनकर नहीं रहे तो आखिरत में तुम्हें अजाब जहन्नम से हमकिनार किया जाएगा, तुम्हें अजाब जहन्नम में डाल दिया जाएगा। जो यहाँ शरीयत का कैदी नहीं उसे अजाब का कैदी बनना पड़ेगा, जो यहाँ कैदी है शरीयत का वो बरोज़े महशर जन्नत में ठिकाना पाएगा, जहन्नम से आज़ाद होगा। ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो।
सैयदा फातिमा की कनीज़ों, मेरी सारी गुफ्तगू जो है इसका खुलासा इसके सिवा कुछ नहीं कि हमें हर हाल में अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की पैरवी करनी चाहिए। किसी भी काम के करने से पहले ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हमारे इस काम से शरीयत ने मना तो नहीं किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा ये फला और फला काम अल्लाह और रसूल की नाराज़गी का सबब बन जाए। मसलन अल्लाह और रसूल हमें मुतअद्दिद ज़ाविये से और तरीके से बेपर्दगी से मना फरमाया है और सख्त अंदाज में हमें पर्दे का एहतमाम करने का हुक्म दिया है, मगर हमारी अक्सर बहनें बेपर्दा घूमती हैं और चलती फिरती नजर आती हैं। तो अब आप ही बताइए, क्या ऐसी औरतें लानत का शिकार नहीं होंगी? बजाय इसके कि हम सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नक्शे कदम पर, उनके तौर तरीके पर चलें, उनके तरीकों को अपनाते, सैयदा राबिया बसरिया की डगर पर चलें, गौसे आजम की मुक़द्दस वालिदा बीबी उम्मुल खैर के नक्शे कदम पर चलें, मखदूम बहार की मुक़द्दस वालिदा वलिया कामिला बीबी रज़िया खातून की पाकीज़ा किरदार को अपनाते। हमने मॉडर्न और दुनियावी औरतों की नकल उतारना शुरू कर दिया है। बाजारी और फाहिशा औरत के तौर तरीकों पर हमने चलना शुरू कर दिया, उनके तौर तरीकों को अपने गले से लगा रखा है। ना हमारा लिबास इस्लामी है, ना हमारा तौर तरीका इस्लामी है, ना हमारे रहने का अंदाज इस्लामी है, ना हमारे खाने पीने का तरीका इस्लामी है, ना हमारी फिक्र इस्लामी, ना हमारा अंदाज़ जिंदगी इस्लामी, ना हमारी जिंदगी इस्लामी, ना हमारा तर्ज रिहाइश इस्लामी। ऐ मेरी बहनों, ऐ सैयदा फातिमा की कनीज़ों, जब दुनिया की यहूदी और नसरानी औरतें तुम्हारी नकल उतारने को पसंद नहीं करती, तुम्हारा नकल उतारने पसंद नहीं करती, तो काफिर और मुशरिका औरतें जो हमारी नकल नहीं उतारती, तो हम उन काफिर और मुशरिका औरतों की नकल क्यों उतारते हैं? ये शर्म की बात नहीं? क्या ये हमारी बेगैरती और मुर्दा ज़मीरी नहीं? क्या ये इस्लामी मिजाज और फिक्र से बगावत नहीं? क्या ये अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी का सामान नहीं? लिहाजा ऐ मेरी माँ और बहनों, ऐ सैयदा फातिमा की कनीज़ों, खुदारा होश में आ जाओ और ज़रा उस दिन से डर जाओ जिस दिन तुम्हें अपने मालिक के सामने पेश होना है और अपनी करतूत के बारे में तुम्हें हिसाब देना है। समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्तां कैसे, समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्तां कैसे, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है, और एक हंगामा महशर हो तो उसको भूलूं, एक हंगामा महशर हो तो उसको भूलूं, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उन औरतों पर अल्लाह की लानत होती है जो औरतें मर्दों की वज़ाक़ता इख्तियार करती हैं और मर्दों की मुशाबहत करती हैं, यानी मर्दों की तरह कपड़े पहनती हैं। मगर आज आप खुद अपनी आंखों से देख सकती हैं कि हमारी लड़कियां, हमारी बहनें इस ढिठाई के साथ मर्दों का लिबास इस्तेमाल कर रही हैं। बाल देखिए तो मर्दों की तरह, कपड़े देखिए तो शलवार की जगह मर्दों की पैंट नजर आती है, जिसे देखिए मर्दों की तरह कपड़े पहनती हैं, कमीज की जगह शर्ट और टी शर्ट नजर आती है, सैंडल की जगह मर्दों वाला जूता नजर आता है। और अगर हुस्ने इत्तेफाक से जनाना लिबास जिस्म पर नजर भी आ गया, औरतों का लिबास जिस्म पर नजर भी आ गया, तो इतना बारीक और पतला कि माअज़ल्लाह सारा जिस्म नंगा नजर आता है, जिसे देखकर इंसान तो इंसान, शैतान भी शर्मा जाए। आज हमारी गैरत इस कदर मर चुकी है कि हमें ये भी एहसास नहीं होता कि आखिर हमारा बेटा या बेटी या भाई हमारे इन बेपर्दा लिबास और उरियानियत को देखेंगे तो दिल में क्या सोचेंगे। यही वजह है कि आज हमारे माशरे से भाई बहन का अदब, माँ बाप का अदब, बहन बहन का अदब उठता चला जा रहा है और नफरत तेजी के साथ हमारे दिलों में घर करती जा रही है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक जमाना ऐसा आएगा कि औरतें कपड़ा पहन करके भी नंगी नजर आएंगी। बस जब ऐसा दौर आ जाए तो क़यामत का इंतजार करना। लिहाजा ऐ इस्लाम की गैरत और गैरतमंद ख़वातीन, खुदारा अपने ही हाथों अपनी इज्जत और नूरानियत को बर्बाद मत करो। दुनियादार औरतों की तरह फूहड़ बनकर बाजारों और गलियों की चक्कर मत काटा करो, बल्कि पर्दे का एहतमाम करो। पर्दे के साथ बाइज्जत होकर अपने घरों से निकला करो। औरत शमे महफिल नहीं शमा खाना होती है, इसलिए कि औरतों को महफिलों में नहीं होना चाहिए बल्कि औरतों को घर में होना चाहिए। वो घर की चिराग और घर की रोशनी होती है। लेकिन आजकल औरतों को देखा जाए तो वो गलियों में नजर आती है, बाहर रोड के पास बैठी नजर आती हैं और इस तरीके से बैठती हैं जैसे किसी का इंतजार कर रही हैं। देखो देखो खुदाए कदीर क्या इरशाद फरमाता है, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रजल जाहिलियतल ऊला, कि जिसका माना यह है कि ऐ औरतों अपने अपने घरों के अंदर रहो और बेपर्दा होकर बाहर ना निकलो। जिस तरह पहले जमाने की दौरे जाहिलियत में औरतें बेपर्दा घुमा करती थी, बेपर्दा अपने घरों से बाहर निकला करती थी, तुम उनकी तरह वज़ाक़ता इख्तियार ना करो, उनके कदम पर ना चलो, बल्कि तुम्हें तो अल्लाह तबारक व तआला ने इज्जत अता फरमाई है। तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दे में रहने का हुक्म दिया है, क्योंकि पर्दे में वही चीज होती है जो काबिल इज्जत होती है। तो ऐ औरतों तुम काबिल इज्जत हो, यही वजह है कि तुम्हें पर्दे में रहने का हुक्म दिया गया। तुम अगर अपने आप को
قابل عزت نہیں سمجھتی تو پھر تم بے پردہ رہو، اور اگر تم اپنے آپ کو قابل عزت سمجھتی ہو تو پھر پردے میں رہا کرو۔ کیونکہ اگر تمہارے ہاتھ میں دو ٹافیاں ہوں، ان میں سے ایک کھلا ہوا ہو اور ایک میں اس کا ریپر لگا ہوا ہو، تو اگر دونوں ٹافیاں تمہاری زمین پر گر جائیں گی تو دونوں میں سے تم کس کو کھانا پسند کرو گی؟ ظاہر سی بات ہے جس میں پلاسٹک لگا ہوا ہے، جس میں کور لگا ہوا ہے، تم اسی کو کھانا پسند کرو گی۔ جو زمین پر کھلا گر پڑا ہے اس میں تو دھول مٹی لگ گئی، اس میں تو چیٹیاں لگ گئی، تم اسے پسند نہیں کرو گی۔ یہی وجہ ہے کہ بے پردہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ لوگوں کی گندی نظروں کا شکار ہوتی ہیں، اور جو عورتیں باپردہ نکلتی ہیں ان کی طرف لوگ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ میں اپنی گفتگو کو یہاں ختم کرتی ہوں اس امید کے ساتھ کہ میں نے جو آپ لوگوں سے بتایا آپ اس پر عمل کریں گی، کیونکہ اسلام کے دامن کو چھوڑنے سے ہمیں کہیں پر بھی کامیابی نہیں مل سکتی، کیونکہ ایک کہنے والے نے کہا کہ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، اور دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم در سے اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی، اور سارے جہاں کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں، سارے جہاں کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔